नमस्कार। आज हम मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में दो बहुत ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड पोटेंशियल मोमेंटम। उस जनरलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो वेज होते हैं किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, एक इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स और एक इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट वही कोऑर्डिनेट जो हमारे कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड, जिसमें हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ही दिक्कत होती है कि क्योंकि कांस्टेंट फोर्सेस होती हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, तो वो जो कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स में हम किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ पर कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट नहीं होते। वो विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट्स दोज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, and there is a big requirement of some coordinates which are independent so that we can use some more mathematics. तो होता क्या है कि हम एक कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। और हमने बताया था आपको कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स इस तरह से डिफाइन किए गए हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, and there is a relation that suppose you have a n system of particle. For n system of particles, if their position is described by some conventional coordinates represented in terms of r, then we wrote ri as a function of generalized coordinates qj and time. Here if you have n system of particles, then I goes from 1 to n, where this n is n, and j is equal to this n is equal to either 3n if there are no constants, and suppose there are k number of constants, then this becomes 3n minus k. So in this way we define a relation between conventional coordinates, these are the positions represented in terms of conventional coordinates ri, and these are the qj's are again the position coordinates, but these are actually the generalized coordinates, which may be the momentum, which may be the angular momentum, which may be the angles or any other property of that mechanical system. Now I told in my previous lectures that with the help of this type of transformation we can find expression for generalized velocity, we can find the expression for generalized acceleration, which was in actual the relation between the generalized acceleration and conventional acceleration. Then we derived the expression of kinetic energy in terms of generalized coordinates, and with the help of kinetic energy we derived potential function. So after that, now we come to generalized force. This is another concept related to generalized coordinates, that is generalized force. If I talk about, as when we introduce these generalized coordinates, we also introduce the concept of virtual displacement. So here again we find the what is the virtual work. Virtual work in terms of conventional coordinates is defined as delta W. I told you that this delta represents the virtual characteristic. So delta W is equal to force into displacement. So it is Fi for ith particle, and displacement will be delta
ri, because this is the displacement in terms of conventional coordinates. And since this I is appearing 2 times, so it is a dummy suffix, number 1. So we will put a summation symbol, which is the summation with respect to I. And secondly, we should put here a dot symbol. This is the dot product, right? And now it is summation I. Automatically, when you put a summation, it is representing for all particles. This is I. I'll write Fi because it is in terms of conventional. So I have to change this delta Ri. Since Ri is this much, so what is delta Ri? Delta Ri is delta Ri, delta Qj and delta Qj. I am not differentiating R with respect to time, because in that case I will get virtual change in time, and in virtual world there is no role of change in time. So I am not writing the second term. Using this 2 in this, in place of delta Ri, I will use this one, delta Ri, delta Qj, delta Qj. Delta Ri, delta Qj, delta Qj, right? Now, in this expression, I is appearing 2 times, so one summation is for I, but j is also appearing 2 times. So what I do, I'll put another summation which is for j, and this is equal to. Now here is one more thing, that if I combine these two, then j is a dummy suffix, so it is representing a scalar. I is a free suffix which is occurring once. So this total term is representing a vector. This Fi is again a vector. So I have put this dot between the two. Now summation. अभी आप देखिएगा मैं एक और कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, तब हम डॉट कैसे रखेंगे. ये जो Fi है, यहाँ डेल्टा आर आई डेल्टा Qj है, इसको मैं एक साथ यहां तक इसको बंद कर रही हूं. Reason being that I is appearing 2 times, so now I is a dummy suffix. So in this summation, this summation is belonging to I. Secondly, j is appearing only as a single, as a free suffix in this expression. This is the new expression. In this expression, this is I, and this is j. So this I is representing the dummy and this j is representing the free. So overall this is a vector, right? और ये जो पोर्शन है ये अभी रह गया है जिसको अभी हम लिखने वाले हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा क्यू जे और यहाँ पर डॉट लगा देंगे. अब जब हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये देखो, इन दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तो हमारा j फिर से डमी हो गया. तो हम यहाँ पर एक समेशन सिंबल लगाएंगे फॉर j और डॉट मेरा यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो ये हुआ, ये वाला जो डॉट हुआ दिस इज फॉर j. अगर बाई चांस ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, अगर बाई चांस इस एक्सप्रेशन में मैंने इस समेशन के नीचे i लगाया होता और इस समेशन के नीचे j लगाया होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं यहाँ पर हम इसको एक्सचेंज कर देते, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि यहाँ अगर i j लिखा था तो यहाँ हम j i कैसे लिखे. समेशन सिंबल का कोई रोल, सिर्फ इतना ही रोल है कि वो एडिशन के बारे में बातें करता है कि हमें ऐड करनी है टर्म्स को, वैल्यू देते जाना है सफिक्सेस को और ऐड करनी है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए हम इसको रखेंगे, ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया था इसको मैं कह रही हूँ Q
सफिक्स क्या लगेगा, आई तो डमी है, जे फ्री है, तो यहाँ भी जे लगेगा। इसको रिप्रेजेंट किया हमने क्यू जे से। उसके बाद मुझे लिखना है डेल्टा क्यू जे, क्योंकि इस पूरे को तो मैंने क्यू जे वैल्यू दे दी। क्यू जे और डेल्टा क्यू जे दोनों के बीच में जे कैसा हुआ, डमी सफिक्स, तो मेरा यहां पर ये डॉट एक ही सिंबल रह गया, समेशन का एक ही सिंबल रह गया, जो किसके रिस्पेक्ट में है, जे के रिस्पेक्ट में। और अब मैं यहां पर दोनों के बीच में डॉट लगा सकती हूँ। इंडिविजुअली दोनों वेक्टर है, पर जब दोनों आपस में मिलेंगे तो स्केलर होगा। वैसे भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर, और जब डमी होते हैं तब भी स्केलर होता है। तो यहाँ पर ऐसे डॉट की शिफ्टिंग हो रही है धीरे धीरे। यहां मैंने क्यों नहीं डॉट लगाया था ऊपर वाले में, देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं कि हमने यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लगाया था। नहीं लगाया था ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एफ आई तो ठीक है, बता रहा है कि वो वेक्टर है। यहां अगर मैं अलग से इसे कंसीडर करूं तो यहाँ आई और जे दो फ्री सफिक्स आ रहे हैं। दो फ्री सफिक्स होने में ये टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 हो गया, ये टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 हो गया। टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 में हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, तो हमने इस डॉट को यहाँ नहीं लगाया था, इसको एक पूरी टर्म बनाया, डेल्टा क्यूजे को अलग लिखा, और ये डॉट जो यहाँ पे चलता चला आ रहा था वो डॉट यहाँ पे लग गया। तो ये अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया which is an expression for virtual work, right? But you can see that this expression is in terms of delta qj, while the initial expression, this was the initial expression, this was in terms of delta ri. It is virtual displacement in terms of conventional coordinates, it is virtual displacement in terms of generalized coordinates. यही हमारा पर्पस था कि हम एक फोर्स इंट्रोड्यूस करें जो जनरलाइज्ड फोर्स कहलाए। तो अब कैसे फोर्स इंट्रोड्यूस हुई, अब हमारी फोर्स इंट्रोड्यूस हुई, हमारा जो क्यू जे है यहाँ पर, तो ये डेल्टा डब्ल्यू आया, क्यू जे कितना हुआ, समेशन एफ आई डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, ये एक्सप्रेशन हुआ क्यू जे का। अब देखिए आप, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, वर्क डन की डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये है ही डिस्प्लेसमेंट, ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूजे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। तो हमारे पास जो क्यूजे आया, दिस इज फोर्स, और हम ये देख रहे हैं इसमें डेल्टा आर आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यूजे आ रहा है। इट सिंपली मीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन लग चुका है, और जो भी ये एक्सप्रेशन आया ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में हम पहुंच चुके हैं। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स कहलाती है, दिस इज फोर्स, एंड क्यू जे इज कॉल्ड जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहां से शुरू किए थे, हमने यहां से शुरू किया था, जिसमें हमारे पास था ये वर्चुअल वर्क इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स। और अब कहां पहुंच गए, हम यहां पे पहुंच गए, हम इस जगह पे आ गए जहां हमने क्या निकाला, दिस इज वर्चुअल वर्क इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। सो ये है वर्चुअल वर्क इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। डेफिनेशन क्या कहती है वर्क की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां हमने लगाया। तो ये तो हुआ फोर्स, एफ आई वाला टर्म, ये वाला, ये तो हुआ फोर्स। और सॉरी, यहां पर एक मिनट, यहां पर ये जो हमारा एफ आई है, ये है एफ आई, ये टोटल का टोटल, ये जो टोटल है ये है फोर्स। क्यों, क्योंकि अभी हमने कंपेयर किया था ऊपर वाले में, हमने ये कंपेयर किया था यहां पर कि ये आ गया है फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, दोनों मिला के क्या बना, वर्चुअल वर्क डन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो यहां से हमारे पास एक नई फोर्स आ गई क्यूजे,
This force is in terms of generalized coordinates, so it is called generalized force. अब यहाँ एक देखने की बात है, ये जो एक्सप्रेशन 3 है, 3 में है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट्स है, डिस्प्लेसमेंट के जो डायमेंशंस है, सॉरी, वो हैं पोजीशन के डायमेंशंस। तो यहाँ तक ठीक है, फोर्स की अपनी एक डायमेंशन है, डिस्प्लेसमेंट की अपनी एक डायमेंशन है, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द डायमेंशन ऑफ वर्क। यहाँ तक तो बात ठीक है। जब हम एक्सप्रेशन 4 में आते हैं, एक्सप्रेशन 4 देखिए, एक्सप्रेशन 4 में एक टर्म है क्यूजे, जिसके साथ लगा हुआ है डेल्टा क्यूजे। डेल्टा क्यूजे जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है। हमें पता है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में किसी भी तरह के कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में ये हो सकता है। कन्वेंशनल के लिए तो ऊपर हो चुका 3 में, अब ये कैसा है, ये एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ये मोमेंटम हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हमें इनके डायमेंशंस ही नहीं पता, डेल्टा क्यूजे किसके डायमेंशंस के रूप में आएगा, तो ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये तो ठीक है, कॉम्बिनेशन मिला करके तो ये वर्क डन है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो क्यूजे है इसका नाम तो फोर्स है कि इसके डायमेंशन फोर्स के ही रहेंगे, इसके डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू विल बी द डायमेंशंस ऑफ वर्क, बट डेल्टा क्यूज बट क्यूजे, कैपिटल क्यूजे will not necessarily has the dimensions of कन्वेंशनल फोर्स। ये कन्वेंशनल फोर्स नहीं है आपकी, जो हमने पहले बताई थी वो फोर्स नहीं है, ये है फोर्स इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, या एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फोर्स होगी वो है ये। तो यहाँ पर क्या आया कि क्यूजे जो है हमारा, दिस क्यूजे will not may not होना चाहिए वैसे तो, क्यूजे is not necessarily having the dimensions of force, but the combination QJ delta QJ will have the dimensions of work। ठीक है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कॉम्बिनेशन मिला करके तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मिला करके, ये जब ये रखेंगे हम क्यूजे को ऊपर, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को मिला करके तो ये वर्क के डायमेंशंस देगा, लेकिन अलग अलग हमें नहीं पता कि क्यूजे के क्या डायमेंशन होंगे और डेल्टा क्यूजे के क्या डायमेंशन होंगे। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स विच विल बी यूज्ड in the analysis which we will do in another topics. Now we come to a new function which is a generalized potential function. इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे जनरलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन को? हम एक इसका केस लेते हैं व्हेन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ये मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था कि फोर्सेस अगर कंजर्वेटिव होती हैं तो हम कैसे फोर्सेस को एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो फोर्सेस कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर आपका पार्टिकल एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, तो माना वो एक बिंदु है ये ए और एक बिंदु है ये बी, ये ए से बी तक जाने में ये पाथ अडॉप्ट करे या ये पाथ अडॉप्ट करे,
या ये पाथ अडॉप्ट करे, वो कोई सा भी पाथ अडॉप्ट करे, सेम वर्क आएगा। उसने कितना काम किया ये जब हम निकालें तो ये सेम आना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको हम कहते हैं कि जो हमारे फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव है। ओके, इसी तरह से हम इसको एक और वे में लिख सकते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि और इफ द फोर्सेस acting on a system, and naturally we are talking about the externally applied forces। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम शुरू में जितना डेरिवेशन कर चुके थे वहां हमने दिखा दिया था कि हमारे पास कौन सी फोर्स बची है, एफ ए हमारे पास बचा है। इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम आर derivable from a scalar potential function, तो हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, से हम मान लेते हैं v सच दैट, अब हमारी फोर्स क्या है, अभी हम कन्वेंशनल में ही है, एफ आई इज इक्वल टू, इसको हम डेराइव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस v। तो कैसे लिखते थे हम लिखते थे ग्रेडियंट ऑफ v। अब आप क्योंकि आई और माइनस सिंबल के साथ लिखते थे, क्योंकि आप सफिक्सेस टेंसर नोटेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसे थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा। हम इसे लिखेंगे डेल्टा आई वी। दोनों तरफ सेम सफिक्स होना जरूरी है, एक तरफ आई यानी कि फ्री सफिक्स एक ही है और दूसरी तरफ भी आई फ्री सफिक्स एक है, तो ये एक्सप्रेशन ठीक है और हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर टर्म होती है। नाउ हियर व्हाट इज दिस डेल्टा आई? This delta I is in actual delta x I, delta y j and delta z k, ये ऐसे करके रिप्रेजेंट हुआ है। एंड व्हाट इज v? v में v एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है, तो v सिंपल ही है बट v इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z। पोजीशन का ये फंक्शन होता है, तो ये एक हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने वर्चुअल वर्क कैसे लिखा था? हमने लिखा था डेल्टा डब्ल्यू वर्चुअल वर्क इज डिफाइंड एज डेल्टा डब्ल्यू को हमने कैसे डिफाइन किया था? डेल्टा डब्ल्यू को यहाँ पर हम पहले हम कहें कि ये है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इस एफ आई को अगर मैं ये रिप्लेस कर दूं माइनस डेल्टा आई वी और फिर डेल्टा आर आई। आप देखिए यहाँ पर डॉट, यहाँ पर जब मैंने एफ आई डेल्टा आर आई लिखा था तो मुझे समेशन लगाना चाहिए था। यहाँ पर फिर से आई और आई दो बार आ रहा है तो मुझे यहाँ पर एक समेशन का सिंबल लगाना चाहिए। मैं इसको ऐसे करके और एक समेशन का सिंबल यहाँ पर लगा देती हूँ और ये डॉट प्रोडक्ट आएगा दोनों के बीच में। ये जो आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा है ये आई का डॉट है। ठीक है, इन दोनों को हम मिला करके क्या लिख सकते हैं? आप देखो, अगर मैं डेल्टा आई वी को खोलूं तो मैं इसको इसके ऊपर ऑपरेट कर दूंगी तो मेरे पास आएगा डेल्टा वी डेल्टा एक्स आई, हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं, वाई जे प्लस डेल्टा वी डेल्टा जेड के। ये एक एक्सप्रेशन आया इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल्टा आर आई के साथ, तो ये तो आएगा ही पूरा। डेल्टा वी डेल्टा जेड के, और साथ में क्या आएगा? डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे एंड डेल्टा जेड के। इनको आपस में हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आया? डेल्टा वी डेल्टा एक्स डेल्टा वी डेल्टा वाई एंड डेल्टा वी डेल्टा जेड। और इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ? दिस इज डेल्टा वी। Virtual change in y, v is a function of positions,
So first you will differentiate with respect to x, then x will be differentiated virtually. V will be differentiated with respect to y and then y with virtual displacement, virtual change in y, और इस तरह से z के लिए किया हमने. तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया. तो यहाँ पर जो अभी तक चल रहा था, ये देखिए ये चल रहा था, ये बिना सफिक्स के आ गया और ये क्या आ गया, दिस इज डेल्टा v. तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया डेल्टा v का. इसको मैं चेंज करके लिख सकती हूँ, दिस इज माइनस में आएगा ये. इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा v डेल्टा आर आई डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे. आप इसे यहां से देख लो या यहां से देख लो. ये जो हमारा डेल्टा आई वी होता है ना, ये वाला, इसको हम डेल्टा वी डेल्टा आर आई भी कह सकते हैं, एक ही बात है. ये जो डेल्टा आई वी है इसको हम ये भी कह सकते हैं. तो अगर देखा जाए तो ये जो था कायदे से मैंने इसकी जगह तो लिख दिया ये माइनस के साथ, और ये जो डेल्टा आ रही है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी वैल्यू से. ऐसे देख लो चाहे आप. यहां पर ये बना माइनस. अच्छा, अब हमें वो और लगाने हैं समेशंस. आई 2 बार है, जे 2 बार है, तो मैं यहाँ पर आई और जे को लिख देती हूँ समेशन समेशन, यहाँ माइनस, और ये आई के लिए और एक जे के लिए, राइट. अब इसमें मुझे अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, इन दोनों को मिलाओ आपस में. इन दोनों को मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे. क्यों, ये कह रहा है v का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आर आई और आर आई का विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे. तो ठीक है, दोनों को कंबाइन किया हमने, इन दोनों को और कंबाइन करके बन गया डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे, ये बन गया. और साथ में है ये डेल्टा क्यू जे. तो पहली बात, एक ही सफिक्स, ये वाला क्यू जे है, ये वाला है, तो एक ही सफिक्स रह गया. तो हमारा जो समेशन सिंबल आएगा आपकी बारी, वो एक ही बार आएगा, एंड दैट विल बी फॉर जी. ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू का. इसको और थोड़ा सफाई से लिख देते हैं, समेशन डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे. मैं यहाँ पर डॉट का सिंबल लगा सकती हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, मिल करके स्केलर बन रहे हैं. अब आप एक चीज़ देखिए, जो पिछला हमारा एक्सप्रेशन आया था वहाँ पर क्या आया था. हमारे पिछले एक्सप्रेशन में जो डेल्टा डब्ल्यू आया था वो इस फॉर्म में आया था, क्यू जे डेल्टा क्यू जे के फॉर्म में आया था. तो हम वो सही लिख लेते हैं. ये हमारा 4 था. अच्छा, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. ये 6 है, एक सेकेंड, this is 7 and this is 8. So comparing with 4, इसका कंपैरिजन करें अगर हम, तो 4 में क्या था, 4 में था which says that delta w is equal to क्यू जे डेल्टा क्यू जे. ये था वहां पर ऐसे. where what was क्यू जे, where क्यू जे was एफ आई डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, और यहाँ समेशन था विद रिस्पेक्ट टू आई. ये हमने पहले निकाला था. तो अब देखिए, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, डेल्टा क्यू जे के साथ यहाँ पर है कैपिटल क्यू जे, और यहाँ डेल्टा क्यू जे के साथ है डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे. तो ठीक है, कंपेयर करने से क्या आया, ये 4 था, तो 4 और 8 से क्या आया, क्यू जे इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया. अब ये हमारा तब आया जब हमने माना कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है. ठीक है, सपोज फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हो, ये है, ये जो आया ना, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है क्यू जे, इसे हम कहेंगे पोजीशन डिपेंडेंट
पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। यहां पर जो v है, v इज पोजीशन डिपेंडेंट पोटेंशियल फंक्शन, राइट। अब हमारी एक सिचुएशन है कि लेट, इसको एक डिफरेंट कलर से लिखते हैं, लेट द फोर्सेस बी नॉन कंजर्वेटिव। ऊपर थी हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस, अब यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाएं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है आपके सिस्टम में, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो पोटेंशियल फंक्शन है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट भी होता है। यहाँ पर वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर केवल पोजीशन डिपेंडेंट है। ये जो हमने निकाला है इसमें आप देखिए ये केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। v इज अ फंक्शन ऑफ क्यू जे ओनली। पोजीशन मतलब पोजीशन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में जो डेरिवेशंस किए गए उसमें ये देखा गया कि जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल है वो केवल क्यूजे पे डिपेंड नहीं करेगा, वो क्यूजे डॉट पे भी डिपेंड करेगा, यानी वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम लिखेंगे, अगर फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है देन देयर एग्जिस्ट अ वेलोसिटी, इसको एक मिनट दोबारा लिखते हैं, then there exists a velocity potential function. This is not a velocity potential, this is a force potential function, a force potential function। जब हम फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो फोर्स पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है, फोर्स पोटेंशियल फंक्शन। इसका कोई नया नाम दे देते हैं, से u सच दैट, तब हमारा क्यू जे का एक नया एक्सप्रेशन आता है, that is minus delta u delta qj plus total derivative of delta u delta qj dot। ये आप केवल याद कर लें कि ऐसा होता है, आपको इसका डेरिवेशन अभी नहीं करना, ये समझना है। आप जितनी मैकेनिक्स अभी पढ़ेंगे उसमें ये यूज नहीं होगा, क्योंकि आप कंजर्वेटिव सिस्टम में रहेंगे या फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होंगे। तो हमें ये समझना है कि एक क्यूजे का जो फॉर्म होता है वो होता है ये वाला, दिस इज वन फॉर्म एंड दिस इज अनदर फॉर्म, दिस इज अनदर फॉर्म, जब आपके फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हो जाते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के समय में हमने ये देखा कि जो क्यू यू है, ये जो यू है फोर्स पोटेंशियल फंक्शन, ये खाली पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये जो यू है विच इज अ फोर्स पोटेंशियल फंक्शन, केवल क्यूजे का फंक्शन नहीं है, ये क्यूजे डॉट का भी फंक्शन है। ये दोनों में डिफरेंस होता है और इसका एक्सप्रेशन भी इस तरीके का हो जाता है। और ये जो क्यूजे है दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन, क्योंकि ये मोस्ट जनरल फॉर्म में है। दिस इज द स्पेसिफिक फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म, सो दिस इज कॉल्ड 9 से जो हमारा है, 9 इज कॉल्ड जनरलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन। ये बहुत ज्यादा यूज होगा आगे आगे। एट्थ जो ये वाला है, जो एट्थ वाला है, सॉरी इसको भी 9 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं। ये जो 9 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपके सवालों में और थ्योरी में सब में यूज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरलाइज्ड नोटेशंस। जितने भी ये लेक्चर हुए पिछले 2-3 उसमें हमने जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन, generalized kinetic energy in terms of generalized coordinates, then generalized momentum and generalized force, and this is last which is generalized potential function। इन सबको देखा कि ये सब हम कैसे करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग की थी डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से, और वहां हमने कहा था कि हम कैसे डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को यूज करके लैग्रांजेस इक्वेशंस निकालेंगे। अगले लेक्चर में हम वो करेंगे कि ये सारे इतनी मेहनत क्यों की है हमने, क्योंकि हमें इस तरह के सब्स्टिट्यूशन की वहाँ ज़रूरत थी। जब हमारा डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल आया था तो वो
कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आया था। कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो वहाँ हमें कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थे। उन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक ये डेरिवेशंस किए हैं, यानी कि नोटेशंस इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू।